کچھ ایسے بھی متاثرین ہیں۔ میری ماں نے کوئی سکھ نہیں دے، کوئی سکھ نہیں دے، سب لوگوں نے مزدوری محنت کی ہے۔ 73 سال عمر ہونے کے باوجود بھی 50% کفالت کرتی تھی اس گھر کا۔ اب میں کیا کروں گی، اس لڑکیوں کا کیا کروں گی، گھر میں بیٹھوں گی تو کیا کھاؤں گی، کچھ کھانے کا ہے؟ زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ یاد آتی ہیں۔ معلوم نہیں میں کب پلا بڑا اور ان کے ہاتھوں میں جوان ہو گیا۔ جب ایک ماں کو آہوں اور سسکیوں کے درمیان دفنایا گیا تو ان کی ہر چیز بھی ان کے ساتھ دفن ہو گئی۔ بس ان کا خیال یاد بن کر اولاد کے ذہن میں اترتا رہا۔ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ امی تے ساری باتیں یاد آتی ہے ماں دی، لیکن ایک گل مجھے بہت یاد آتی ہے، جب میں آ جاتی نہیں تھے میں واپس ہی جاتی سے میرے نال رشکے میں بیٹھ کر پھر لاری اڈی جا کر پھر سیٹ پہ بٹھا کر تے کیلنڈر اور ڈرائیور نے یہی وصیت کر دی سی، بیٹا یہ میری بیٹی پردیسن ہے، اس کو صحیح جگہ تو اتار دے، یہ خراب نہ کر۔ میری بوڑھی ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میری جنت، میری محنت مزدوری کرنے والی ماں، اس نے بڑی مشکلوں سے ہمیں پالا تھا۔ جس کی زندگی اس کے ساتھ گزر گئی، ان کے گھر میں بھی کام کرتی ہوں، ان کے بیٹے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے گھروں میں بس کرتی ہوں، باہر نہیں جاتی ہوں۔ میری امی تھی، وہ اس کو میں نے ساس کبھی بھی نہیں وہ سمجھا تھا، امی کی طرح تھی میری۔ وہ ماں سے کم نہیں تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس علاقے کے لیے اس کے جو خدمات تھے، صرف میں ہی نہیں، اس علاقے کا بچے سے لے کر بوڑھے تک سب ان کے غم میں نڈال ہیں، اور یہ ایک ایسا حادثہ ہے کہ اس کو بھولنے کے لیے ہمیں کافی وقت چاہیے ہوگا۔ نام گرانہ بی بی عرف نانی، عمر تقریباً 73 سال، کچکول شیخ آباد نمبر 3 پشاور کی رہائشی۔ وہ اپنی چھوٹی سی دکان میں مکئی کے ابلے ہوئے بھٹے فروخت کرتی تھی اور گھر کی کفالت کرتی تھی۔ پہلے تو ایک اسکول میں آیا کے فرائض انجام دیتی رہیں۔ بیمار بیٹے اور بیٹی کا پیٹ پالنے کے لیے گرانہ بی بی عرف نانی دن رات محنت کرتی تھی۔ میری ماں نے گٹکا سے پڑھتی تھی، یہ یہ پڑھتی تھی، یہ میرے ماں نے یہ کمائی کی ہے، یہ پیسے یہ سودا بیچ کے، یہ سودا بیچ کے یہ اس کے آخری کمائی ہے میری ماں نے، یہ میری ماں کا آخری کمائی ہے۔ وہ اسکول سے جب نکلی تو لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھویا کرتی تھی، کام کاج کرتی تھی، اور شوہر سے وہ مطلب ہے کہ اس کا شوہر بہت پہلے وفات ہو چکا تھا۔ بچوں کو اس نے بڑا پالا پوسا دوسروں کی خدمت کر کر کے، لیکن کبھی کسی کے سامنے اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا، خودداری کا اس کا یہ عالم تھا۔ شی واز اے بریو لیڈی، اور اسے اگر کاش کے علاقائی طور پر کسی کو امن ایوارڈ ملتا تو وہ ضرور وہ جیتتی، لیکن اس کو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں
सर्विसेज के हवाले से, नोबल डीड्स के हवाले से मदर टेरेसा से वो कम नहीं थी। मैंने बचपन से ही उन्हें मेहनत मजदूरी करते देखा। वो एक स्कूल में आया भी थी, लोगों के घरों में काम भी करती थी। वो लोग उनको खाने पीने के लिए देते, वो चुपके से अपने थैले में डालकर हमारे लिए ले आती, हमें खिलाकर बहुत खुश होती। बस उसकी हर बात मेरे को याद आती है। मेरा बेटा जो था उसके साथ बहुत प्यार करता था, अपने बेटे के लिए बहुत प्यार था उसका। मैं काम पे जाती थी, इनका ख्याल करूंगी कि अपना ख्याल करूंगी, क्या करूंगी। सुबह जाती थी, बस दिगर को मैं आ जाती कपड़े धोने के लिए, इस्त्री के लिए। यही गम में इनका, भाई क्या करूंगी। घर से सुबह मैं जाती थी, इसको बोलती थी मैं जा रही हूँ, कहती चलो अल्लाह के हवाले। उस दिन बात भी नहीं हुई थी, चारपाई भी लेटी थी। कोई कीमत, इंसानी जान की कीमत 3 लाख नहीं है। वो अगर जिंदा होता, वो अपने घर के कफील होता, तो वो कितने अरसे तक क्या कुछ करता घर के लिए, ये सोचिए। तो आप कम से कम उसका 50 तो करें, उसका निसफ तो उसका कुछ हल तलाश करें ना। लेकिन वो 3 लाख में आप देखो, और बस उसके बाद अपनी जिम्मेदारी ख़त्म। उसके बाद कोई नहीं पूछता किस हाल में और क्या हो। धमाकों ने न सिर्फ पुलिस के एहलकारों बल्कि राहगीरों की भी जान ली। 11 साला मासूम बच्चा असगर अली उसकी जद में आ गया और महल्ले भर की खिदमत गुजार और मासूम गराना बीबी भी अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए वहां सौदा लेने गई थी। लेकिन मौत के सौदागरों ने उन्हें एक दर्द से दो चार किया। ये मैं ना उधर भी मैं पंजाब में मैं टीवी आगे बैठी सी, मैं खबर सुनी है। जैसे लौरी दरवाज़ा हमारे साथ ही है ना, खबर मैं सुनी है तो उधर धमाका हो गए। तो मैं कहा या अल्लाह खैर, मैं कह साढ़े इलाके में धमाका हो गया, या अल्लाह खैर, पता नहीं खैर तो होएगा। फिर मेरी बड़ी बेटी नहीं सी, जॉब करने जानती सी। मैं कहा चलिए ये आएगी ना, उसको मैं आखंगी तू नानी ने फ़ोन कर जो उधर खैर खैरियत है। नहीं, वो वाली मैं बेटी से दूसरा धमाका हो गए, 2 धमाके हो गए। फिर मैं सारा दिन मैं बहुत परेशान है। लेकिन उधर मैं तस्बीह सी रोज़े सी पंजाब में बड़ा रिवाज है, और फिर मैं उधर पढ़ने के लिए गई सी। और लेकिन मेरा दिल परेशान सी, बहुत आवाज़ार सी, परेशान सी। फिर रात 9 बजे इधर टाइम से इधर टेलीफोन आ गए, मैंने कहा इस तरह तेरी माँ ना बम दे धमाके बिचो जख्मी हो गई, तो तू जा सकनी है आ जा। लेकिन मुझे तो इस नानी नहीं बताई जो फोत हो शहीद हो गई। तो इस तरह इन्होंने कि मैं ज़ख्मी हो गई। फिर मैं उसी टाइम मैं गाड़ी में बैठ के तो मैं इधर आ गई। जब मैं इधर आ गई 9 बजे मैं इधर पहुंच गई, तो मेरी माँ शहीद हुई सी। फिर मैं रोई कर ली अपनी माँ के लिए, लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ कोई बात नहीं की है। मैंने बोला माँ मैं आ गई, उठ मेरे से बात कोई कर। लेकिन मेरी माँ भी दहशत गर्द नहीं, शहीद कर चढ़े, मेरी माँ उठ नहीं उठ सकती। और इसी तरह मैं आ गई। वो किडनी की पेशेंट थी, डायबिटिक भी थी, और वो यही कह रही थी कि अब रोज़ों में मुझे काफ़ी मसला हो रहा है रोज़े रखने में। लेकिन वो अगरचे उसको हम समझाते भी थे कि जहाँ पे आपको डॉक्टर कहें कि रोज़ा ना रखें, तो अल्लाह की तरफ से अगर आप पे चीज़ माफ़ हो तो आपको भी मतलब है कि वो कर। उसने कहा कि नहीं, हमारे कुछ ट्रेडिशनल्स हैं, ट्रेडिशनली वी आर बाउंड टू कीप इट। तो वो रिवायती तौर पर वही वो चीज़ उसके साथ लिंक करती है कि शी वाज द नेशनलिस्ट, ट्रेडिशन को फॉलो करने वाली वो औरत थी। तो बस बमाए इसके कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हुआ करती थी, लेकिन वो रोज़ा छोड़ती नहीं थी। तो वो कह रहा था कि इस रोज़ों में मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, और शायद मैं आपकी बातों पे और डॉक्टर की बातों पे अगले साल अमल करूं। लेकिन शायद उसको पता नहीं था कि अगले साल उसका इस दुनिया में है ही नहीं। उस दिन भी रोज़े से थी और अपनी छोटी सी दुकान बंद करके मकई के भुट्टे लेने जा रही थी, मकई के उबले हुए भुट्टे। और जहाँ धमाका हुआ ना गंज गेट पर, वो वहाँ से खरीदने गई थी। वहाँ धमाके का सुनकर देखने गई। वो वहाँ पहुंची तो दूसरा धमाका हुआ।
और वो शहीद हो गई। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में ये भी फरमाया कि ये जो फसाद फिल अर्द करने वाले हैं, क़त्ल नाहक करने वाले हैं, ये असल में अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने वाले हैं। फरमाया कि इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूला, कि उन लोगों की जज़ा या सज़ा जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और जो अल्लाह की ज़मीन में फ़साद बर्पा करते हैं, उनकी सज़ा ये है कि उन्हें चुन चुन कर क़त्ल किया जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए या उनके हाथ और पाँव मुखालिफ समत से काट दिए जाएं या उनको क़ैद करके इंसानियत को उनके शर से और आज़ार से निजात दी जाए। पेशावर की फिजा एक बार फिर सोगवार हो गई। 11 जून सन 2011 में खैबर सुपरमार्केट धमाके के ठीक 2 माह बाद खुदकुश हमले ने एक बार फिर हुकूमत, इंतजामिया, शहरियों और ताजिरों की तशवीश में इजाफा कर दिया। यके बाद दीगरे धमाकों के नए सिलसिलों ने बहुत से शहरियों की जानें ली हैं। हम लोग तो चूँकि यहाँ पे एक अरसा हो गया धमाके सुन रहे, अब तो ये हमारे लिए एक मामूल बन गया है। कोई पेशावर में आम लोगों के लिए मामूल बना हुआ है कि ये धमाके हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आदी हो चुके हैं यहाँ लोग। लेकिन अब जो इनकी पॉलिसी ये हुई है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान के लिए वो एक धमाका करके लोगों को इकट्ठा करते हैं और लोग आ जाते हैं। कोई तमाशबीन होता है, कोई किसी को खैरियत पूछने आता है, और दरमियान में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मौके से फ़ायदा उठाते हैं, आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वहाँ पे दूसरा धमाका होता है। यहाँ पे यही हुआ। उनकी जो पॉलिसी थी वो सेम वही थी। उन्होंने पहला धमाका किया और वैन उड़ा दी, और उसके बाद लोग इकट्ठे हो गए, और उसके बाद खुदकश हमले का जो खातून को इस्तेमाल किया कि वो ये सेम पॉलिसी थी। वो कोई टेक्निकल मसला था कि वो खातून उसमें कामयाब नहीं हुई और वो ब्लास्ट नहीं हुआ और उनकी जैकेट को ऊपर नहीं हुई, तो वो उसके दस्ती बम से वो मरी भी है, वो उड़ी भी है, तो उसके हाथ में जो दूसरा दस्ती बम था वो फट गया था, उसकी वजह से उड़ी, वरना जैकेट तो फेल हो गई थी उससे। तो वो काफ़ी मतलब है जानी नुकसान बच गया। उस दिन गई सौदे लैंड, ये चली वगैरह उधर बहुत बेचते, पापड़ लैंड, चली लैंड, ये इसके लिए गई थी। सौदा लेने भी गई थी और साथ में ये भी देखने गई थी कि कितने लोग शहीद हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपने इलाके के लोग हैं या नहीं है। बेसिकली ही वाज अ वेलफेयर वर्कर, तो वो भी उसके दिल में था, हमदर्दी के तौर पे वो गई थी कि ताकि अगर अपने इलाके के लोग हो ताकि उसको हेल्प आउट किया जा सके। तो इसी दौरान में वो दूसरा ब्लास्ट में जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं उसे अस्पताल से लाया था, उसे पहचान लिया था, इसलिए कि उनका चेहरा सलामत था। मेरी माँ को जिस्म पर चोटें आई थीं। कुछ लोग कहते हैं कि वो खुदकुश बमबार लड़की के बहुत नज़दीक थी। उन पर शुबा था, वो एक मुअम्मा बनी रही। टीवी और अखबारात ने उन्हें दहशतगर्द का साथी करार दिया, मगर बाद में पता चला कि वो तो मासूम और बेगुनाह थी और माँ थी। मेरी ही नहीं, शायद पूरे शेखाबाद में भागने दौड़ने वाले बच्चों और बड़ों की नानी थी। कहते हैं कि 16 साल खुदकुश बमबार लड़की की जैकेट बुरक़े के सबब और नाक़िस बारूदी मवाद के सबब मुकम्मल तौर पर फट न सकी। वो बुरक़ा उतार कर जैकेट का बटन दबाना चाहती थी, मगर नाकाम रही। वो टारगेट से कबल लाहौरी गेट पर पुलिस नाके से 3 मरतबा गुजर कर जायजा ले चुकी थी। जब पुलिस इंस्पेक्टर की नज़र उस पर पड़ी तो उसने खुदकुश जैकेट का बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। दूसरा दस्ती बम भी उसके पास मौजूद था। खुदकुश लड़की का हाथ बुर्का उतारने के दौरान फंस गया, जिसकी वजह से जैकेट बर वक्त न फट सकी। उसका चेहरा काबिल शनाख्त है। क्या आप में से कोई जानता है कि ये कौन है? क्या आप में से किसी ने इसे कहीं देखा है? जीत जाते गरीब जितांदे, नाम बीरद हो जाते। खून खून होता है, इंसानी जान बहुत कीमती होती है, उसका कोई कीमत नहीं होता है। उनकी शादी होगी, हम लोग खुशियां मनाएंगे, मगर सब खाक में मिल गईं।